Hello friends, once again I am Suresh Pandey from Aradhya classes CTM Ahmedabad. Friends, we have started chapter number 6, the cultural heritage of India. Now friends, let us see the new topic, Humayun's tomb. The tomb of Humayun is at Delhi. The tomb of Humayun at Delhi is the best specimen of Mughal architecture. After death of Humayun के मरने के बाद में It was built by his wife Queen Hamida Begum. उनकी पत्नी हमीदा बेगम ने इसको बनवाया था. This tomb was made in Iranian style of art. कौन सी ईरानी शैली में इसको बनवाया था. Red and white stones were skillfully used in it. Red and white stones. लाल और सफ़ेद पत्थरों का इसमें अच्छी तरह से उपयोग हुआ है. फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम कौन सा फोर्ट ऑफ आगरा, आगरा फोर्ट की, आगरा किला की. फोर्ट ऑफ आगरा इज इन आगरा सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश. कहाँ पे? आगरा सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश में आया हुआ है. इट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन्स, हैंस इट इज नोन एज रेड फोर्ट. इसको रेड फोर्ट के रूप में लाल किला भी बोलते हैं. क्यों? लाल पत्थरों से बना हुआ इसके हिसाब से. इट वॉज बिल्ड बाय अकबर इन 1565 AD. कभी 1565 AD में इसको अकबर ने बनवाया था. वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ हिंदू एंड इरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट इन इट. किसमें? हिंदू और ईरानी स्टाइल आर्ट उसमें देखने को मिलता है. द फोर्ट हैज 70 फीट टॉल वॉल. कितनी? 70 फीट टॉल वॉल है उसमें. उसकी दीवारें हैं 70 फुट की ऊंची हैं विथ 1.5 माइल सर्क्यूफरेंस. रेड स्टोन्स आर स्किलफुली एम्बेडेड ऑन द वॉल इन सच अ वे दैट नो cracks can be seen on the wall. Jahangir Palace was built by Akbar in this fort. The architecture style of Bengal and Gujarat on Jahangir Palace can be seen clearly. Shahjahan had spent the last days of his life in this fort. शाहजहां ने अपनी जिंदगी के अंतिम समय इस किले में बिताया था. फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम. Yes, you may be asked in the examination. आपको एग्जाम में ये पिक्चर दिया होगा. इन दी अब मैं बात करूँ आपको, तो अभी जो लास्ट एग्जाम हुई बोर्ड की, उसमें आपको ये मॉन्यूमेंट का पिक्चर दिया हुआ था. एंड यू हैड सेड दैट यू हैड नॉट मेंशन द नेम. आपको नाम नहीं दिया हुआ था, सिर्फ मॉन्यूमेंट का पिक्चर दिया था. विच मॉन्यूमेंट इज दिस एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन इट. उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो. फ्रेंड्स, ये तो हम लोग इसको जानते हैं, फेमस ही है, लेकिन आपको ऐसे पिक्चर भी पूछा सकते हैं एग्जाम के अंदर. देखते जरा हम लोग. कौन सा? ताजमहल है. दिस प्लेस इज ताजमहल. Friends, let us see that Taj Mahal is located at Agra in Uttar Pradesh on the banks of river, on the river bank. Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. It was constructed by Mughal king Shahjahan in the memory of his wife Queen Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal died in 1630 AD. After her death, the construction of Taj Mahal was started. Construction of Taj Mahal was started, and it took 22 years. इसको 22 साल लगे इसको बनने में लगभग 22 साल लगे. In 1631, it was started to build. It was completed in 1653 AD. After 22 years, Shahjahan used export Indian sculptures beside Iranian, Arabian, Turkish and European sculptures. Artisans were also engaged in this construction of Taj Mahal. Taj Mahal is counted as one of the best tombs of the world. दुनिया का सबसे अच्छा मकबरा है ये. Due to this tomb, the name of Mumtaz Mahal became immortal. क्या हुआ? मुमताज महल का नाम अमर हो गया इसकी वजह से. This was the utmost wish of शाहजहां. शाहजहां की एक ये अंतिम इच्छा थी, एकदम दिल से इच्छा थी. The building of Taj Mahal is spread in rectangular shape में ये बिल्डिंग आई हुई है. From north to south, the grave of Mumtaz lies in the center of the Taj. ताज के बीचों बीच में मुमताज की कब्र आई हुई है. It is surrounded by beautiful artistic octagonal frames carved out of stone. A beautiful saying is inscribed on one of its arches. उसके एक arches पे, उसके एक गुंबज पे, उसकी एक arches पे क्या एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है?
pious hearts are welcomed in the garden of paradise. पवित्र दिलों का स्वर्ग के बगीचे में स्वागत है. पवित्र दिलों का स्वर्ग के बगीचे में स्वागत है. That has been written that. Friends, the architecture of Taj glorifies the rich heritage of India. The grandeur of the Taj attracts thousands of people every year. हर साल हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं. फ्रेंड्स, एक नया टॉपिक. विच वन? ये देखा होगा पिक्चर आपने पिक्चर देखा होगा. यस, इट इज रेड फोर्ट. कौन सा? लाल किला है ये. हर साल हमारे प्रधानमंत्री जो भी 26 जनवरी या 15 अगस्त को यहाँ पर दिखाई देते हैं. 15 अगस्त को यहाँ से स्पीच देते हैं. कौन सा प्लेस है? रेड फोर्ट है ये. आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम कौन सा? रेड फोर्ट के बारे में. रेड फोर्ट लोकेटेड एट डल लेक वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन 1638 AD. कभी 1638 AD में इसको बनवाया था. दिस फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन्स. लाल पत्थरों से बना हुआ है. शाहजहां फाउंडेड सिटी नेम शाहजहानाबाद. शाहजहां ने यहाँ पे एक शहर बनवाया था. क्या नाम था? शाहजहानाबाद. इन दिस सेम फोर्ट, इसी किले के अंदर, विच वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, जिसका नाम उनके नाम पे से पड़ा था. दिस फोर्ट इंक्लूड्स दीवाने हाम, दीवाने खास, रंग महल. दीवाने खास इज मोर मैग्निफिसेंटली decorated than other buildings. It is decorated with an amalgamation of gold and silver. किसी गोल्ड, सोने और चांदी से इसको सजाया हुआ है. Embedded with the precious stones, कीमती पत्थरों से बनाया हुआ है इसको. The other buildings of Red Fort are, दूसरी जो बिल्डिंगें हैं कौन की? दूसरी बिल्डिंगें हैं किसकी? इसके रेड फोर्ट की. रंग महल, मिरर पैलेस, कौन सा? आईना महल of Mumtaz, Lahori Gate, which one? Lahori Gate, Meena Bazaar and Mughal Garden, etc., which are the center of attraction of Red Fort. Friends, Peacock Throne, कौन सा? मयूरासन, Peacock Throne, the best aesthetic creation of this fort, which Nadir Shah took along with him, जो नादिर शाह अपने साथ में ले गया. कहाँ पे? ईरान ले गया. Red Fort is one of the outstanding building among the Mughal art of architecture. Every year, our Indian flag is hosted on the Red Fort on national festivals. आगे बात करें फ्रेंड्स हम आगे जो हमारे पास में है कौन सा? फतेहपुर सीकरी. फतेहपुर सीकरी. फ्रेंड्स, एक कहानी है कि अकबर की कोई संतान नहीं होती थी. बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं होती थी. तो बादशाह अकबर कहाँ? फतेहपुर गए. सूफी संत सलीम चिश्ती के पास में. बादशाह अकबर गए और उन्होंने बहुत मन्नतें मांगी उनसे. उसके बाद में अकबर की एक संतान हुई. नाम रखा उन्होंने सलीम. और वो सलीम बाद में जहांगीर बना. फ्रेंड्स, तो अब ये सलीम चिश्ती की याद में बादशाह अकबर ने फतेहपुर को अपनी कैपिटल बनाने का नक्की किया. अपनी राजधानी बनाने का सोचा उन्होंने. तो देखते हैं हम जरा फतेहपुर के बारे में. फ्रेंड्स, इट इज 26 माइल्स अवे फ्रॉम आगरा इन उत्तर प्रदेश. Akbar has founded this city in the memory of Sufi Sant Sheikh Salim Chishti. He made his own capital city. उन्होंने अपनी राजधानी बनाया. लेकिन बाद में क्लियर क्या हुआ? बाद में ऐसा हुआ कि फतेहपुर के अंदर पानी की कमी है. कोई भी राजधानी पानी के बिना नहीं चल सकती. तो बाद में उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी रखा. The building construction of Sikri was started in 1569 AD and completed till 1572 AD. The best building among them are Palace of Birbal. बीरबल महल है यहाँ पे. Golden Palace of बीबी मरियम, Palace of टर्की सुल्तान, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा. दिस पिक्चर कौन सा है? बुलंद दरवाजा है. द बुलंद दरवाजा ऑफ फतेहपुर सीकरी इज 41 मीटर वाइड and 50 meter high there. The other well known and remarkable buildings of Sikri are Palace of Jodhabai, Panchmahal. Which one? Panchmahal. Tomb of Sheikh Salim Chishti, Diwane Am, Diwane Khas, and Jyotish Mahal. These are the famous places of Fatehpur Sikri there. Next point, friends, the church. The Basilica of Bom Jesus here. The church has been given.
फ्रेंड्स, चर्चेस ऑफ गोवा, गोवा की चर्चों के बारे में बात करते हैं हम। देखो दोस्तों, अब गोवा की चर्चेस की बात करें हम तो क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरीज कैम टू इंडिया विद द पोर्टुगीज लोग आए, उनके साथ में क्या हुआ, यहाँ पे ईसाई मिशनरीज भी आ गए टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन धर्म का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। गोवा वाज द कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज। मेनी चर्चेस वर बिल्ट इन गोवा लाइक चर्च ऑफ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस and Basilica of God Jesus are in old Goa. The relics of the Saint Francis Xavier, the relics of Saint Francis Xavier is kept in coffin in Church of Goa. गोवा के एक चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर्स की डेड बॉडी रखी हुई है, उनका शरीर रखा हुआ है। His dead body has not decayed even after so many years had been passed. इतने साल बीत गए, इतना टाइम बीत गया, लेकिन अभी भी उनका शरीर जो है उसमें बिल्कुल भी सड़न नहीं हुई है, बिल्कुल वो शरीर सड़ा नहीं है। Beside there are many churches in Goa. इसके अलावा भी बहुत सारे और चर्चेस भी गोवा में। It is well known for its beautiful beaches and its artistic churches. आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग कौन सा, चंपानेर की बात करते हैं हम, चंपानेर। ओके फ्रेंड्स, चंपानेर की बात करूं मैं तो महमूद बेगड़ा ने क्या किया, चंपानेर को जीत के वहां पे अपनी राजधानी बनाए, नाम दिया मोहम्मदाबाद। कौन सा, मोहम्मदाबाद। चंपानेर इज सिचुएटेड एट द फुटहिल्स ऑफ पावागढ़ एट हलोल तालुका इन पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ चंपानेर, महमूद बेगड़ा gave it the position of capital and named it Mohammadabad. Moti Masjid, Jama Masjid and historical fort are the different buildings in Champaner. Considering art of architecture and historical importance, so Champaner, UNESCO had declared this town as the site of World Heritage. इसको विश्व विरासत के रूप में इसको घोषित किया। It is Jama Masjid at Champaner. Friends, places, monuments of cultural heritage of गुजरात के कल्चर हेरिटेज की बात करें, फ्रेंड्स, तो गुजरात हैड द फोरमोस्ट प्लेस इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स। many beautiful architectural sites can be seen here. For example, cave architecture, temples, forts, wow, arches, etc. Now let us know about places of cultural heritage of Gujarat. गुजरात के कल्चर हेरिटेज प्लेसेस के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स यार। आगे हमने चैप्टर 3 में इसके बारे में देखा हुआ है, कौन सा, धोलावीरा एंड लोथल। धोलावीरा और लोथल में हमने चैप्टर 3 में इंफॉर्मेशन ली थी। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग धोलावीरा और लोथल के बारे में। धोलावीरा एंड लोथल वेर मेन सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन जो शहर थे, कौन सा, धोलावीरा एंड लोथल। Dholavira is situated in Khadir Beach at Bhachau Taluka in Kutch district. Dholavira is known for its ideal town planning, whereas Harappan culture was renowned as the center of trade and commerce. 5,000 years ago from today, कभी 5,000 years ago from today, bead making factories, कौन सा, bead making factories and ornament making cell were found out from at Dholavira. आगे बात करते हैं हम किसके, लोथल के बारे में। लोथल is situated near Ahmedabad. Bhavnagar highway is an architectural place which was main center of trade and commerce and well facilitated port of Harappan culture in the ancient time. फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम किसके बारे में, जूनागढ़ के बारे में। देखो ये जूनागढ़ की बिल्डिंग है, कौन सी, टॉम्ब ऑफ बहाउद्दीन वजीर। कहाँ है, जूनागढ़ में आया हुआ है। इन जूनागढ़ स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, बुद्धिस्ट केव्स ऑफ कापराकोडिया, वाव, ओल्ड राजमहल, नौगढ़वेल, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद खान एंड टॉम्ब ऑफ बहाउद्दीन वजीर एटसेट्रा places are worth seeing. Bhavnath fair is held in the foothills of Ginnar on महाशिवरात्रि। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम, ये एक सीन है हमारे पास में, आपने देखा होगा इसको। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं।
हिंदू मुस्लिम की एकता यहाँ पे बताते हैं। कौन सा सर? इसमें तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा ऐसा, मैं आपको बताता हूँ। देखो जरा, ये आप देखो यहाँ पे, ये एक पेड़ है। कौन सा पेड़ है ये खजूर का पेड़ है। खजूर क्या होता है? इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। आगे देखो, ये दूसरा ये पेड़ है यहाँ पे, ये शाखाएं हैं इसकी। कौन सा है? कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष हिंदू में बहुत पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पे खजूर और कल्पवृक्ष दोनों को मिला करके बनाया हुआ है। कौन सा? सीदी सैयद की जाली है ये, अहमदाबाद में आई हुई है। अहमदाबाद में है सीदी सैयद की जाली। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम अहमदाबाद की। अहमदाबाद कुड बी नोन एज द हिस्ट्रिकल सिटी, ऐतिहासिक शहर है ये। फोर्ट ऑफ भद्र, जामा मस्जिद। कौन सा? भद्र का किला या जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। मॉस्क ऑफ क्वीन सिप्री, रोजा ऑफ सरकेज, सरकेज रोजा दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा रोजा है वो। कांकरिया लैब, सेकिंग मिनारेट्स, झूलता मिनारा, झूलता मिनारा। सीधी सैयद जाली ग्रिल which has been mentioned here, it is in the picture. Temple of Fateh Singh, Mosque of Queen Roopmati are world-seeing architectures of Ahmedabad. The second minarets outside Sarangpur Darwaja, कहाँ पे? Second minarets outside Sarangpur Darwaja in Raipur Gomtipur are well known for its unsolved secret of vibration. एक मीनारे पे चढ़ के उसको हिलाओ तो दूसरा मीनार अपने आप से हिलता है। ये इसकी खासियत थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स, द सीदी सैयद ग्रिल इज फेमस फॉर इट्स वेजिटेशनल एंड ज्योमेट्रिकल क्रिएशन एंड मीनार एंड मिनिट कार्विंग हियर। कौन सा? सीदी सैयद ग्रिल की बात करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम कौन सा? पाटन के बारे में। ये प्लेस, आपको बात बताऊं मैं, आपको एक क्वेश्चन पूछा सकता है। ऑन 100 रुपीज नोट, कौन सा? On 100 rupees new note, which monument is mentioned there? 100 रुपए की नई नोट पे कौन सा मोन्यूमेंट का पिक्चर है? राइट शॉर्ट नोट ऑन इट, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखो। क्या है? अरे मेरे भाई, यही है। कौन सा? वाव ऑफ रानी की वाव, दैट हैज बीन मेंशन्ड देयर। अलग अलग देखो, अभी मैं लास्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था। ऑन 500 रुपीज नोट विच प्लेस इज दैट? 500 रुपए की नोट पे कौन सा मोन्यूमेंट बताया हुआ है? कौन सा है? रेड फोर्ट है, याद होना चाहिए अपने। अच्छा ठीक है। 200 रुपए की नोट पे कौन सा मोन्यूमेंट है? 200 रुपीज की नोट पे कौन सा मोन्यूमेंट है? 200 रुपीज की नोट पे कौन सा मोन्यूमेंट है भाई? यस 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 यस, कौन सा मोन्यूमेंट है? अरे भाई, स्तूपा ऑफ सांची है। कौन सा? स्तूपा ऑफ सांची है। अच्छा, 2000 रुपए की नोट पे कौन सा मोन्यूमेंट है? मोन्यूमेंट नहीं है यार, वो कौन सा? मंगलयान है। उस पर नोट्स का भी नोट होना चाहिए। यू मे बी आर शॉर्ट नोट ऑन दैट, आपको उसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा सकती है। आगे बात करते हैं हम कौन सा? पाटन। कौन सी प्लेस है ये? रानी की वाव। फ्रेंड्स, सहस्रलिंग लैक इन पाटन, सहस्रलिंग लैक इन पाटन, टेम्पल ऑफ क्वीन रानी की वाव एंड रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर आर वर्ल्ड-सीइंग आर्किटेक्चर्स. The ruins of Rudra Mahalay in Siddhpur suggest the grandeur of the palace, which is situated 26 किलोमीटर ऑफ पाटन, जो कितना? पाटन से 26 किलोमीटर दूर आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा कौन सा? यस, किसने बनवाया था इसको? इसको बनवाया था क्वीन उदयमती। उदयमती क्वीन ऑफ भीमदेव वन, भीमदेव सोलंकी की पत्नी उदयमती ने इसको बनवाया था। बिल्ट वाव स्टेप वेल टू catch the need of the water to her subjects, उनके लोगों के लिए, which is known as the stepwell of Queen Rani Ki Vav. UNESCO included this vow as the World Heritage Monument in 2014. This vow indicates the beautiful arrangement of water harvesting for people usage in ancient times. Siddharaj Singh built a lake named Sahasraling Lake in 1140 AD. आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम, अपार्ट फ्रॉम द फोर्ट ऑफ वडनगर, वडनगर का जो किला है, शर्मिष्ठा लैक एंड कीर्ति आर्चेस एंड कीर्ति तोरण आर वर्ल्ड-सीइंग मॉन्यूमेंट्स. आर्चेस आर क्रिएटेड ऑन द 2 इरेक्टेड पिलर्स क्रिएटिंग शेप लाइक बाव, धनुष की ऐसा एक उन्होंने सीन बनाया वहाँ पे. शामलाजी टेम्पल सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मेसो रिवर इज एन एंशिएंट प्लेस for pilgrimage. This art of architecture is marvelous. आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम, ये मैप के अंदर देखिए दे रहा, मैप में अलग अलग प्लेसेस के बारे में यहाँ पे मेंशन है. कौन कौन सी प्लेसेस आपके पास में आई हुई है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. फ्रेंड्स, कौन कौन सी प्लेसेस हैं यहाँ पे वो इसमें मेंशन किया हुआ है आपको. तो ये बहुत ज़्यादा कहीं पे भी हमको डिस्क्रिप्शन करने की ज़रूरत है, इसके बारे में नहीं है. आगे हम बात करते हैं, लेट अस सी दैट
Many stupas and viharas. Many stupas and viharas were built in Gujarat during Kshatrap period. The remains of Buddhist stupas are found from Bordevi of Junagadh district. Devni Muri near Samlaji, Intawa stupa in Girnar near Junagadh, etc. Beside these, many other architectures are of Didipuri, Bawapara, Upperkot, Kaprakodia, Kambalida, Talaja, Sana, Dang, Jojejar, कालिया डूंगर एटसा सीन इन गुजरात में सब देखने को मिला है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम कौन सा स्टेपवेल ऑफ अडालज, अडालज की वाव के बारे में बात करते हैं नियर गांधीनगर। स्टेपवेल ऑफ क्वीन ऑफ पाटन, कौन सा क्वीन ऑफ पाटन के स्टेपवेल। आदिकड़ी स्टेपवेल नियर स्टेपवेल एट जूनागढ़। अपार्ट फ्रॉम दिस नडियाद, मेमदाबाद, उमरठ, कपड़वंश, वधवान and Kaleshwari etc. are the example of wow architecture. There are many Jain temples. There are many Jain temples on Shatruंजय mountains at Palitana in Bhavnagar district. Few of the temples were built in 11th century. इसमें से कुछ temples जो हैं, कुछ मंदिर जो हैं 11वीं century में बनाए थे। Taranga pilgrimage is situated on the hills near Timba village at Keralu Taluka in Mehsana district. The temple of Taramati is also situated here. Somnath temple at Gir Somnath district and Dwarkadish temple at Devni Muri Dwarka, at Devbhumi Dwarka there has gorgeous historical heritage. The list of Gujarat's cultural heritage has not been completed yet. Many such places are there in Gujarat, which makes our cultural heritage rich and prosperous. दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग कौन सा साउथ इंडियन टेम्पल्स, साउथ इंडियन टेम्पल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स साउथ इंडियन टेम्पल्स की बात करते हैं हम, साउथ इंडियन टेम्पल्स ऑफ इन एंशिएंट इंडिया। टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर फेमस फॉर देयर डिफरेंट स्टाइल, अलग अलग जो उनका स्टाइल है उसके लिए साउथ इंडिया के टेम्पल्स बहुत फेमस हैं। They were made in Dravid style of art. कौन सी द्रविड़ शैली में बनाया हुआ था वो। They are in pyramidal shaft with the multi-storied one attractive stone is placed on its top. एक बहुत वजनदार पत्थर हर मंदिर के ऊपर रखा हुआ है और वो फ्रेंड्स वो 5-10 किलो का नहीं, वो टन्स का था, हजारों किलो का पत्थर होता था, वो मंदिर के ऊपर रखते थे। कैसे चढ़ाते होंगे उसको वो सोचने की बात है। The yard of temple was very huge. Many South Indian temples built in ancient time are as given below. उनके नाम नीचे कुछ दिए हुए हैं। Name of temple and places, कहाँ पे आया हुआ है वो देखते जरा। महाबलीपुरम कहाँ पे आया दोस्त, महाबलीपुरम तमिलनाडु। कैलाश टेम्पल कहाँ पे है, कांचीपुरम तमिलनाडु। ब्रजेश्वर टेम्पल कहाँ पे, तंजावुर तमिलनाडु। विरूपाक्ष टेम्पल पदरकल कर्नाटका। परशुरामेश टेम्पल कहाँ पे है, भुवनेश्वर ओडिशा। एंड वैकुंठ पेरुमल टेम्पल कांचीपुर तमिलनाडु। तमिलनाडु में ज़्यादा ये बनाया हुआ है सब। देखते हैं फ्रेंड्स हम आगे प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन इंडिया। प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन इंडिया दोस्तों, इंडिया में बहुत सारी यात्रा वाली जगह आई हुई हैं। इंडिया इज सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, एक यात्राओं का एक जगह है। देखो मैं आपको बात करूं, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ। 4 धाम हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 51 शक्तिपीठ हैं। अब अपने बात करें तो 4 धाम कौन कौन से हैं। देखो भाई 4 धाम कौन कौन से हैं। 4 धामों में हम बात करें तो कौन सा 4 धाम लॉर्ड विष्णु के होंगे, द्वारका, फिर बद्रीनाथ, कौन सा वो ईस्ट में कौन सा है। देखो फिर से बात करते देखते हैं हम लोग जरा, इसमें मेंशन हुआ है। फ्रेंड्स इंडिया हैज बीन लैंड ऑफ पिलग्रिमेज सिंस एंशिएंट टाइम। पीपल ऑफ इंडिया गो ऑन पिलग्रिमेज। द जर्नी ऑफ 4 धाम इन 12 ज्योतिर्लिंग्स इंक्लूड्स बद्रीनाथ कहाँ पे, उत्तराखंड में, रामेश्वर तमिलनाडु में, द्वारका गुजरात में, जगन्नाथपुरी ओडिशा। दिस 4 धाम्स आर देयर। मोरओवर पिलग्रिमेज ऑफ 51 शक्तिपीठ। उसके पहले हम बात करें कौन सा, 12 ज्योतिर्लिंग्स भी हैं। सोमनाथ है ना, फिर कौन सा उज्जैन, महाकालेश्वर वहाँ पे, सोमनाथ वेरावल में है, फिर और भी कौन सा और भी बहुत सारे, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग हैं। लॉर्ड शिवा का वहाँ पे पूजा होती है। फ्रेंड्स विच वन
मोर पिलग्रिमेज ऑफ 51 शक्तिपीठ। अब शक्तिपीठ क्या होती हैं मैं आपको बताऊं दोस्तों कि क्या हुआ, लॉर्ड शिवा पत्नी सती का शरीर, मरी हुई पत्नी सती का शरीर अपने कंधे पर रख करके यहाँ वहाँ बढ़ते थे, तब लॉर्ड विष्णु ने, भगवान विष्णु ने क्या किया, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर की, किसके, सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। वो जहाँ जहाँ पे उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ पे क्या हुआ, शक्तिपीठ बन गया। And 51 Shaktipeeths and Amarnath Yatra are considered as one of the most important. Friends, here गिरनार प्रदक्षिणा, अलग अलग जगह पर प्रदक्षिणा भी होती है। गिरनार प्रदक्षिणा, शैतन्य प्रदक्षिणा and नर्मदा प्रदक्षिणा have great importance. India is a treasure house of rich cultural heritage. In this way, places of Indian cultural heritage gave India a unique identity in the world. The tourists from India and abroad visit Indian art of architecture regularly. This accelerates the economical benefits of tourism industry in India. Thus, 32 monuments of India culture and natural heritage have been included in the World Heritage Site by UNESCO. Friends, here we have seen the many cultural heritage places in this chapter. In the next video, we will start new chapter there. Thank you, friends.